Good morning, students. Let's start online classes of Eklavya International Academy once again after the summer break. Before, in the previous classes, we have completed up to third chapter, and now we are starting the chapter number 4, that is carbon and its compound. Today we will take 3 topics of this chapter. First is abundance of carbon, second is electronic configuration of the carbon, and third is bonding in carbon compounds. First topic is abundance of carbon. Abundance of carbon, when we are taking this topic, at the 2 places we will take the abundance. First, in the earth crust, and second, in the atmosphere. In the earth crust, we will find carbon compounds in the 4 groups: carbonate, hydrogen carbonate, coal, and petrol. These 2 are metal from ore form of the metal, and these 2 are fossil fuel. Why we are calling it as a fossil fuel? Fuel means energy giving substance. Fossil means it is made up by the dead residue of any animal. It may be an animal, it may be an plant. Means coal and petrol both are made up by the dead plants and dead animals and used as an energy giving substance. So it is known as fossil fuel, right? After the earth crust, we will see atmospheric abundance of the carbon. In the atmosphere, as we conclude that carbon is present 0.05% all over in the atmosphere. Out of it, 0.03%, 0.02% is abundance, atmospheric abundance in the form of carbon dioxide, carbon monoxide. Means we can say that 2 type of abundance is founding of the carbon: earth crust abundance, atmospheric abundance. In the earth crust, 4 type of substance we will get: carbonate, hydrogen carbonate, coal and petrol. Carbonate and hydrogen carbonate basically form metal ore, and coal and petrol is founding as a fossil fuel. After that, atmospheric abundance in the form of gases, that is carbon dioxide and carbon monoxide, right? After the abundance, we will take electronic configuration of carbon. Let's see around you. You will see many things around you: curtains, chairs, tables, paper, many more, even human beings. Most of the things around us is made up of carbon. Why we are telling you, why we are considering the carbon? Most of the things is made up of carbon. Most of things. Why? Because carbon has a unique ability. That is also known as versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon. Due to this versatile nature, it forms millions of carbon compounds around us. Millions of carbon compounds.
How can we consider that any substance which we are taking, which we are looking, that is made up of carbon? First, for the simple test, if you are burning any substance, then it will give you a flame, and smoky flame it will give. It maybe give black residue. Both of the indication shows you that it is made up of carbon. Why? Because if any substance has carbon and it is burning, then it will react with oxygen. Because you all know that oxygen is a supporter gas in burning. So if you are burning any substance and if that substance has carbon, then it will react with the oxygen and will give you carbon dioxide. If oxygen is present in a less amount, then it will react as a C+O and will give you carbon monoxide. Both products will give smoke, black smoke, or maybe it will give you black residue. Both is the indication of carbon, that substance which we are burning have carbon as a major point. Millions of the compounds are formed by the carbon, and behind that versatile nature of the carbon is responsible. What is the versatile nature? In the further units we will take the versatile nature. I am giving you just brief introduction. Versatile nature of carbon. Two nature it will show. First is tetravalency, and second is catenation. Due to these important features, due to these two important characteristics, carbon forms millions of the carbon compound. Even it is founding only 0.05% in the atmosphere. Out of that it will form millions of carbon compounds, more than other elements, right? So we already have taken the abundance of carbon. Two type abundance we have take here. First in earth crust, second in atmosphere. In the earth crust, four types: carbonate, hydrogen carbonate, coal, petrol, and in the atmosphere as a gases, just like carbon dioxide and carbon monoxide. Let's begin second topic, electronic configuration of carbon. You all are well known about the atomic number. What is the meaning of atomic number? If any element is neutral in nature, if any element is neutral in nature, then proton number will be equal to electron number, and both of these also will be equal to atomic number. Means what we can say, that proton number which is present in any element, that number shows atomic number of that element. Carbon, atomic number of the carbon is 6, right? Atomic number of the carbon is 6. So we can say that in the neutral manner, carbon will 6 protons, 6 electron, it will show, right? If it is present in neutral manner. If 6 protons and 6 electron is present in carbon, then protons will exist in the nucleus and electron will revolve around the nucleus. So we can make 6 protons in nucleus. In the first shell
2 electrons. In the second shell, 4 electrons. Right? You all are well known about the outermost shell, that is also known as valence shell. Right? And the electron which is present in the valence shell is considered as valence electron. So how many electrons is present in valence shell? 4 electrons. So we can say that carbon has 4 electrons as a valence electron. Right? If you are writing the electronic configuration, then what will be the electronic configuration? 2, 4. 2 electron in the first shell, 4 electron in the second shell. If we are writing SPDF configuration, 1s2, 2s2, 2p2. Second shell has 4 electrons. I'm writing the electronic configuration right here. 2, 4, and in the manner of SPDF it will be 1s2, 2s2, 2p2. K-element configuration. After the electronic configuration, bonding in carbon compounds. Bonding. Why any element is bonded with the another element? Because every element wants stability. Every element wants stability. And for the stability, every element wants complete outer shell, complete octet. राइट? कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन. कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell. 3 conditions arises from the outermost shell if any element has 4 electron in the outermost shell, less than 4 electrons in the outermost shell, more than 4 electrons in the outermost shell. Why we are taking as a midpoint as a 4 electrons? Because we are taking octet as a stability. Octet means 8 electrons in the outermost shell and just half is 4 electrons. तो क्या होगा कि अगर half electrons present है stability जो चाहिए उसके लिए, या फिर उस half से भी कम electron present है, या फिर half से ज़्यादा electron present है, then what will be the condition? If any element has less than 4 electrons in the outermost shell, then element try to lose electron. क्या करता है? लूज करता है. अगर ज़्यादा होते हैं तो एलिमेंट try to gain electron. कैसे? Just take example. Metals. Metals is the best example for the electron losing capacity. ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो ऑल विल ट्राई टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट टेक द एग्जांपल्स. Na plus, Mg plus 2, Al plus 3, Na. Just rememorize the atomic number of Na. क्या है? 11. 11 is the atomic number of Na. Just fill the configuration as a K element. 2, 8, 1. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 कंप्लीट हो गए. मीन्स रेस्ट 1 इज
So it will take position in the third shell. Third shell में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स इट विल ट्राई टू लूज. एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है मीन्स इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज. क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, उसका रीज़न देखिए. Na के पास न्यूट्रल कंडीशन में 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम की अगर बात करें, आई एम नॉट राइटिंग प्रोटॉन नंबर हियर, एट द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन आई एम राइटिंग Na. फर्स्ट शेल will gain 2 electrons, second shell will gain 8 electrons, one is rest, so we will write in the third shell. इस कंडीशन में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट कंडीशन कौन सी शो कर रहे हैं, आफ्टर द लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस सिंबल किसको शो कर रहा है, लूज करने को. यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है, किसके लिए, फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी. नाउ Na विल बी, प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए, वो तो न्यूक्लियस में है. चेंज किस में आया, इलेक्ट्रॉन्स में. आफ्टर द लूजिंग इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए दोनों कंडीशन, यहाँ पे जब न्यूट्रल नेचर की बात कर रहे थे, वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूट्रल, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. तो कैंसिल हो गए, 11 पॉजिटिव विल कैंसिल द 11 नेगेटिव, बट नॉट राइट हियर. रीज़न, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से ज़्यादा हो गया. कितना ज़्यादा हुआ, 1. 10 इलेक्ट्रॉन्स ने 10 प्रोटॉन्स को कैंसिल कर दिया चार्ज को. आपको ये तो पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स चार्जेस इज इक्वल. सिंबल विल बी, साइन जो होता है उसके पॉजिटिव का और नेगेटिव का वो अपोजिट होता है, बट चार्ज का जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल द चार्ज ऑफ 10 प्रोटॉन्स, बट 1 प्रोटॉन इज रेस्ट. तो इस कंडीशन को शो करने के लिए कि इसके पास एक प्रोटॉन अभी ज़्यादा है, इसको शो करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, Na+, राइट. ऐसे ही मैग्नीशियम का हो जाएगा. मैग्नीशियम हैज़ 12 एटॉमिक नंबर, सो इन द न्यूट्रल नेचर इट विल show 12 proton number and 12 electron number. After the losing 2 electrons, it will show 12 protons but 10 electrons. So this, in this condition, magnesium will be written as Mg+2. ये तो हुई losing condition. Gaining condition में क्या होगा? Example, non-metals. Non-metals are the example for the gaining capacity of the electrons. कैसे, देखिए एग्जाम्पल, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3 and many more. Just take the simplest examples, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जिनके एटॉमिक नंबर आपको इजीली लर्न भी होंगे. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, so in the neutral nature 9 protons and 9 electron will be present. Electronic configuration जब आप इसका write up करेंगे, then 2,6 will be the electronic configuration. Here 2,7 will be the electronic configuration. Electronic configuration I am writing in a abbreviation EC, electronic configuration, right? Just take a look. In the outermost shell, more than 4 electron is present. In the outermost shell, more than 4 electron is present. So it will try to gain the electrons. How many electron is needed for the completion of octet? Only 2 electrons. Because 6 is already present, and for the completion of octet means 8 electrons, it needed 2 electrons. So after the gaining of 2 electrons,
+2 कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मीन्स इट इज गेनिंग, देन कॉन्फिगरेशन विल बी 2 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, प्रोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स इन दिस कॉन्फिगरेशन 8 protons and 10 electron is present. Now take a look. कौन सा वाला ज़्यादा है? नेगेटिव। कितना ज़्यादा है? 2. So after the gaining of 2 electrons, we will write the configuration, we will write the symbol for this configuration as a O-2. फ्लोरीन की अगर बात करें, 7 electron is present in the outermost shell, means valence shell. 1 electron is rest for the gaining stability. So it will gain 1 electron. After the gaining of 1 electron, configuration will be 2 8, and all over configuration will be 9 protons के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेगेटिव इज मोर देन प्रोटॉन्स, पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया, नेगेटिव कितना ज़्यादा हुआ? 1. सो वी आर राइटिंग हियर एज ए F-। अब देखिए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या करेगा? लूज करेगा या गेन करेगा? यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? देख, क्वेश्चन है कार्बन डजंट फॉर्म C+4 एंड C-4, व्हाई? लूज करेगा तो C+4 बनना चाहिए, गेन करेगा तो C-4 बनना चाहिए, बट दोनों ही कंडीशन कार्बन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट कंडीशन अगर लें C+4 वाली, C+4 कंडीशन आते ही कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 इन द इनिशियल कंडीशन। आफ्टर द गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग नहीं करनी है, लूजिंग करनी है, +4 की बात कर रहे हैं। लूज करते ही कार्बन के पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि अब जब 4 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली इसने लूज कर दिए हैं, तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द वैलेंस शेल फॉर द कार्बन इफ इट इज लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स। पहले की कंडीशन में 6 प्रोटॉन्स के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट नाउ 6 प्रोटॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक रोप लेते हैं, रोप लेने के बाद 6 मेंबर्स को सेंटर में खड़ा करते हैं। 6 मेंबर्स को उस रोप को पकड़ के एक सर्कल बनाना है, जस्ट लाइक द वैलेंस शेल। ठीक है, 6 मेंबर्स जो अंदर खड़े हैं और 6 मेंबर्स जो रोप को पकड़ के खड़े हुए हैं, उन दोनों को अपने तरफ से पूरा फोर्स लगाना है। अंदर वाले अंदर की तरफ रोप को खींचेंगे और जो रोप को बाहर की तरफ यानी शेल में लेके खड़े हैं वो बाहर की तरफ उस रोप को खींचेंगे। व्हाट विल हैपन? अगर जो 6 मेंबर अपन ने अंदर और बाहर लिए हैं वो स्ट्रेंथ में इक्वल हो तो क्या होगा? रोप अपनी जगह ही रहेगी, वो ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। रीज़न, जो अंदर वाला फोर्स है, 2 फोर्स लग रहे हैं यहाँ, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, जो कि अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। एक अंदर की तरफ खींच रहा है, एक बाहर की तरफ ले जाना चाह रहा है, बट दोनों इक्वल होने की वजह से रोप क्या रह रही है? अपनी ही पोजीशन में रह रही है। लेकिन वो ये कंडीशन है जिसमें आपने 6 मेंबर्स सेंटर पे खड़े किए हैं, दैट इज प्रोटॉन्स, 6 मेंबर्स आउटर शेल में खड़े किए हैं एज अ सर्कल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो अपन ने सर्कल बनाया है, राइट? तो इस कंडीशन में रोप अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। बट इन द नेक्स्ट कंडीशन में आपके सेंटर वाले तो वही हैं, बट जो आपको रोप को खड़े करके जो मेंबर्स आपने खड़े किए थे उनमें से 4 मेंबर हटा दिए गए हैं।
अब जब 4 मेंबर हटा दिए गए तो क्या 6 मेंबर जो सेंटर पे खड़े हैं वो उस रोप को अंदर नहीं ले लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो कार्बन की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देना चाह रहे थे स्टेबिलिटी, बट वी आर लूजिंग द स्टेबिलिटी जो कि पहले बनी हुई थी। ठीक है, यानी इनिशियल स्टेबिलिटी को भी अपन ने क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया है। सो इट इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी गेनिंग के लिए। वी आर गिविंग द electrons to an element, we are losing electrons from an element for the giving stability. But in this condition, if carbon is losing the 4 electrons from its outermost shell, then it will lose the initial stability also. We are not giving a stable form. इसमें क्या होगा, 6 protons उन बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में आके ड्रॉप हो जाएंगे और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है और अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको रिवॉल्व करवाना है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की इतनी अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी एनर्जी की कि आप जितनी भी अर्थ पे एनर्जी है वो सारी ही लूज़ कर देंगे, फिर भी आप इन कार्बन एलिमेंट्स को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन हैज़ द मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स, और अगर मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स को स्टेबल बनाना है विच इज़ फाउंड बाय द कार्बन, तो आपको हर एक कार्बन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स उन 6 प्रोटॉन्स को इक्वली फोर्स से क्या कर सके, अपोज कर सके। सो इट इज़ नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फॉर्म होगा ही नहीं क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन देखिए C-4। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन वी आर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता ही है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, 6 प्रोटॉन्स विद द 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए। ठीक है, इसको न्यूट्रल कंडीशन मानते हैं। आफ्टर द गेनिंग C-4, 6 प्रोटॉन्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वही कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं। 6 मेंबर्स इन द सेंटर, 10 इज हैंडलिंग द रोप। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन, रोप को खींच के बाहर ले जाएंगे बिकॉज 6 मेंबर्स कांट होल्ड दी 10 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का फोर्स उन 10 मेंबर्स के फोर्स को क्या नहीं कर पाएगा, अपोज नहीं कर पाएगा, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 मेंबर्स ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ खींचने वाला, और इस कंडीशन में भी ये स्टेबल फॉर्म गेन नहीं कर पाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर इन द फर्स्ट केस C+4, व्हेन वी आर फॉर्मिंग द C+4, then 6 proton will exist at the nucleus and 2 electrons will revolve around the nucleus, and for this condition much more energy is required for the stability, because 6 protons can attract 2 electrons easily. So this condition is not as stable. Second condition, in the second condition 6 proton is holding the 10 electrons, and it is not possible because 10 electrons can go out from the shell, बाहर जा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या होगा, फिर तो कार्बन स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, या यूँ कह दें कि कार्बन इन दोनों ही कंडीशन से ओवरकम करने के लिए क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो किससे होगी, या तो कार्बन से ही होगी या फिर अनदर एलिमेंट से भी हो सकती है, जैसे लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे होंगे। बट ये कंसिडर कीजिएगा कि जिससे भी वो दूसरे एलिमेंट से जब बॉन्डिंग करेगा तो उसके फीचर्स बदल जाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे। जैसे कि कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के कार्बन में ऐड होते ही कार्बन के जो इनिशियल फीचर्स थे, इनिशियल जो कैरेक्टर्स, दैट विल चेंज।
कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो साइनाइड बना देता है। कार्बन में वो फीचर नहीं होता है, कार्बन जहरीला नहीं होता है, बट नाइट्रोजन के साथ अटैच होने के बाद वो जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ऐसे ही कार्बन एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, सॉलिड कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते ही गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो वो जो न्यू फीचर्स उसमें डेवलप हुए हैं, वो जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप हुए हैं, वाई? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग विद दी अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये शेयरिंग पे डिपेंड करेगा कि वो किस अनदर एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं दैट आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडेंसी आ गई आपके पास कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो शेयरिंग डेफिनेशन क्या होगी कोवलेंट बॉन्ड की? bonds which is formed by the sharing of electrons that are known as covalent bond। कौन से bonds कहलाते हैं? covalent bonds कहलाते हैं। जब भी कोई बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना होगा, साझेदारी से बना होगा, दो एलिमेंट आपस में पास आएंगे, पहला एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एलिमेंट को देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरा वाला भी फर्स्ट वाले एलिमेंट को देगा, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। इसमें दोनों एलिमेंट्स का बेनिफिट होगा। भाई जाहिर सी बात है कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपको बेनिफिट ही नज़र नहीं आ रहा है तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, शेयरिंग में नहीं जाएंगे। तो दो एलिमेंट आपस में शेयरिंग करने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली दोनों का बेनिफिट है, दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और बॉन्ड भी तभी फॉर्म होगा जब दोनों को एक स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ शेयरिंग के अंदर चला जाएगा, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ये एक स्पेसिफिक फीचर हो गया आपके कार्बन कंपाउंड्स का कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 59 पे देखिएगा, एक टेबल दे रखी है, उसमें एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, मीथेन है, 3-4 कार्बन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और उन तीनों चारों कार्बन कंपाउंड्स का जब आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे, देन यू विल गेट दैट ऑल द कंपाउंड्स डजंट शो मोर देन 4, आई थिंक 350 ऐसे कुछ दे रखा है केल्विन, यानी 400 केल्विन से ऊपर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं उनमें से। तो उसका रीज़न क्या है? वाई दे आर शोइंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, वाई दे आर शोइंग लो बॉइलिंग पॉइंट? क्या रीज़न है उसके पीछे? कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपस में जब भी कोई कंपाउंड बन रहा होता है कार्बन के एलिमेंट अनदर एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बना रहा होता है, कार्बन अनदर एलिमेंट्स के साथ जब कोई कंपाउंड बना रहा होता है, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड का, दैट इज मीथेन, CH4 सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है मीथेन। उसे बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को बायोगैस क्यों कहा जाता है? रीज़न, मीथेन इज़ द मेजर कंपोनेंट इन बायोगैस। जब भी जो ये डंग होता है, काऊ डंग, एनिमल डंग किसी का भी मान सकते हैं, तो एनिमल डंग से जब भी क्या बनाई जाती है, बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस गैस बनाई जाती है, तो वो बायोलॉजिकल थिंग्स से बन रहा है, सो वी विल कॉल दैट गैस एज अ बायोगैस, और नॉर्मल लैंग्वेज में अपन उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। तो उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिलने वाला कंपोनेंट है, जो कि एज अ फ्यूल अपन यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ मीथेन।
ये मीथेन सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है और इस कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कार्बन कंपाउंड में कार्बन अनदर 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इसके साथ आकर कंबाइन हुए हैं। क्यों हुए हैं उसका रीज़न आपको पता है, बिकॉज कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड 4 इज नीडेड। तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ वो शेयर करेगा। और हाइड्रोजन को इससे बेनिफिट क्या होगा, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दैट इज हीलियम। यानी इसका भी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। और कार्बन भी जब 4 और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स फॉर द बोथ इट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट नहीं बोलेंगे, अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट कर लिया। क्यों कह रहे हैं ऑक्टेट, क्यों नहीं यूज़ किया अपन ने यहाँ पे वर्ड, बिकॉज इट इज़ नॉट गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इट इज़ गेनिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आप ऑक्टेट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ गेनिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, राइट। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, मीन्स वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। कार्बन इज गेनिंग नॉट गेनिंग, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स with the its 4 electrons, so completely it will है। अब अगर इसकी कंडीशन देखिए तो इसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, कब, शेयरिंग कर लेने के बाद। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो कार्बन मीथेन स्ट्रक्चर है वो दूसरी मीथेन स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना ही नहीं रखेगी, क्योंकि इसका पहले से ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी मीथेन के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है दोनों के बीच। अगर दोनों कंपाउंड्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। और इजीली ब्रेक कर सकते हैं इसलिए आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, इनके लो रहेंगे, कम रहेंगे। दूसरे जो इसका रीज़न है वो ये है कि कार्बन कंपाउंड्स को जब आप तोड़ते हैं, डिसोशिएट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो नो आयन फॉर्मेशन, विल बी सीन। कोई आयन फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न, शेयरिंग से बन रहे थे, जैसे ही आप शेयरिंग तोड़ेंगे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी ना तो कार्बन ने हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन दिया, ना हाइड्रोजन ने कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दिया, तो चार्जेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक चार्ज किसी एलिमेंट पे नहीं आता है तब तक वो आयन नहीं कहलाता है। आपको पता ही है, वी ऑलरेडी हैव studied in the 9th standard that 2 types of ions found in the nature, cation and anion। cation में इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, पॉजिटिव चार्ज विल अकर ऑन दी एलिमेंट, and if any element is gaining the electron then negative charge will be occur and that is known as anion। तो कोई आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा और आयन फॉर्म नहीं होने की वजह से ही अट्रैक्शन फोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। रीज़न आपको पता है कि अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कहा जाता है। जैसे कि सॉल्ट में Na और Cl दोनों अपोजिट आयंस हैं। Na इज़ पॉजिटिव, Cl इज़ नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस के अंदर क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो कार्बन कंपाउंड्स में ऐसा कोई फोर्स नहीं पाया जाता। पहला रीज़न, कार्बन कंपाउंड्स के बीच में 2 इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो क्या नहीं होता,
स्ट्रांग नहीं होता, दूसरा कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होती। तो पहला तो अट्रैक्शन फोर्स जब कम होता है तो वो क्या शो करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा कि आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही, पहला अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया, दूसरा कंडक्टिविटी भी तो खत्म हो गई, बिकॉज कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, या यूँ कह दें कि इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, बिकॉज आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अपन ने करी आज, अबंडेंस ऑफ कार्बन, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। जस्ट रिमेमोराइज दीज थिंग्स। अबंडेंस में अपन ने दो चीज़ें करी, अर्थ क्रस्ट में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, जिसके अंदर अपन ने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 6। फर्स्ट KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है, सेकेंड अपन ने SPDF लिया है जिसमें 1s2, 2s2, 2p, 2 कॉन्फ़िगरेशन लिया है। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, क्यों कर रहे हैं बॉन्डिंग, उसका रीज़न है स्टेबिलिटी, कंप्लीट करने के लिए किसको, आउटर मोस्ट शेल को। और उसमें अपन ने देखा कि कंपाउंड्स कैसी बॉन्डिंग शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी हुई बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और इस कोवलेंट बॉन्डिंग से जो स्पेशल फीचर्स आते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, वो क्या क्या होते हैं, एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकेंड जो क्या होता है कि ये आयन फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं इस कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। और अगर आयन फॉर्मेशन नहीं होता है इनके अंदर तो ये कैसे शो होते हैं, इंसुलेटर, मीन्स दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड जो अपन ने लिया है दैट इज मीथेन। कौन सा है, मीथेन, CH4, बायोगैस का मेजर कंपोनेंट। तो उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अपन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कोवलेंट बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपका जो CH4 है वो कैसे बना हुआ है, एक कार्बन कितनी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एवरी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन वी आर टेकिंग हियर, बट एवरी हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है हर एक हाइड्रोजन में। और कार्बन में फर्स्ट शेल इज ऑलरेडी completed with the 2 electrons, second shell has 4 electrons. Now शेयरिंग के लिए आपको करवाना पड़ेगा ओवरलैप, किसको, शेल को, कार्बन शेल को हाइड्रोजन शेल से क्या करवाना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए आउटर मोस्ट शेल से ओवरलैप करेंगे। इस एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आफ्टर दिस शेयरिंग, देखिए शेयरिंग कहाँ हुई, इस ओवरलैप्ड पार्ट में। ओवरलैप्ड पार्ट में ही अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रखा, क्योंकि ये वाला पार्ट कार्बन के भी यूज में आ रहा है और यही वाला पार्ट हाइड्रोजन के भी यूज में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये ओवरलैपिंग के अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, जस्ट टेक अ लुक, कार्बन के पास इस पूरे सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है इसका ऑक्टेट। हाइड्रोजन के पास देखिए, हाइड्रोजन का एक सर्कल अगर आप कंसीडर करें तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। एवरी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, मीन्स इट इज़ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोथ एलिमेंट्स। कार्बन के लिए भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया और हाइड्रोजन के लिए भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं और ऐसे बॉन्ड्स को अपन जब भी दो एलिमेंट्स जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही शेयरिंग करें, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एलिमेंट से शेयरिंग में जा रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स से शेयरिंग में आ रहा है, तो आप उसे सिंगल बॉन्ड से शो करते हैं। किस बॉन्ड से शो करते हैं? सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड एक सिंगल लाइन से शो किया जाता है। सिंगल बॉन्ड किससे शो किया जाएगा? सिंगल लाइन से। यानी कोवलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। देखिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सबसे पहले लेते हैं सिंगल बॉन्ड, जो कि अभी अपन ने देखा मीथेन में। और भी कोई एलिमेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड को कंसिडर करता है? लेट्स टेक एग्जाम्पल H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, राइट? एवरी हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट शेल। पहले शेल में, हाइड्रोजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1, मीन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, Z is 1. Atomic number is 1. 2 hydrogen we are taking here. इसको कंसिडरेशन के लिए 1 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाते हैं, देन सेकेंड हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाते हैं, H एंड H। फर्स्ट हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया विद दी सेकेंड हाइड्रोजन। देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग कर ली। नाउ इसको प्रेस कर लीजिए अपने हैंड से, पाम से, अपने से। देखिए, इसका जो हाइड्रोजन का एक सर्कल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको प्रेस करेंगे तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली वी कैन से दैट बोथ हैव कंप्लीट फर्स्ट शेल। ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला भी। कंसिडरेशन के लिए अपन क्या लिख देंगे? 1 एंड 2। ठीक है, यानी ये फर्स्ट हाइड्रोजन है और ये वाला सेकेंड हाइड्रोजन है। नाउ द नेक्स्ट, किस तरह से शो किया जाएगा? सिंगल लाइन। We will represent it as a single line or single bond is known as single bond. Another information is 2 electrons is required in sharing
इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है शेयरिंग के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए ये सिंगल लाइन बेसिकली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने का काम कर रही है, ज्वाइन कर रही है, इसलिए ये एक सिंगल लाइन की फॉर्म में शो किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं डबल बॉन्ड। Just take a look. O2. O2 is the example for the double bond. इसमें 2 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं with the each other. First oxygen and second oxygen. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना मानेंगे? एटॉमिक नंबर 8 है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6। ईच ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट। देखिए फर्स्ट ऑक्सीजन and then second oxygen। ठीक है, देखिए let's take 2 electrons in the sharing 1 2। ये O1 यानी ऑक्सीजन फर्स्ट शेयर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सेकेंड ऑक्सीजन, की शेयरिंग होगी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं। नाउ द रेस्ट इज 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। पहला जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो कहा जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इनके बीच में जब आप बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले बॉन्ड को शो करने के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नीचे वाले बॉन्ड को शो करने के लिए नीचे वाली सिंगल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। राइट, मीन्स इट इज डबल बॉन्ड। क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है। और अनदर इंफॉर्मेशन इज 4 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब आप इसको शो करें तो कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन बॉन्डिंग एंड 4 इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्यों शो किया जाता है इसको, इसका रीजन है पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या बोला जाता है इसे, लॉन पेयर।
तो इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें भी 2-2 पेयर बन रहे हैं और उन्हें क्या कहा जाएगा, लॉन पेयर. नाउ द थर्ड वन, थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल लेंगे अपन किसका, N2 का. देखिए N2 में 2 nitrogens is combining together. एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7. मीन्स 7 protons and 7 electron is present in neutral nature. It also has 7 electronic configuration. Means 7 protons and 7 electrons is combining in it. Electronic configuration हो जाएगा 2 5 2 5, राइट. देखिए आउटर मोस्ट शेल अगर दोनों का शो किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकेंड शेल अगर आप इसको कंसिडर करें दोनों का, बोथ हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. 1 2 3 1 2 3 एंड 2 इज रेस्ट. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. N is bonded with the another N with the triple bond. Triple bond. And how many electrons is required for the triple bond? 6 electron is required for the formation of triple bond. दूसरा तरीका नाइट्रोजन N2 को शो करने का, ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज इसके ऊपर रहेंगे ही और 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसके ऊपर इस तरह से शो कर देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके लॉन पेयर. दिस इज लॉन पेयर. एवरी नाइट्रोजन हैज 1 लॉन पेयर ऑन इट. तो ये आपके हो गए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन. तो आपने 3 तरीके के कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिए हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. एवरी हैज एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक सिंगल बॉन्ड H2, डबल बॉन्ड O2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N2. These are the कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कौन कौन से थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. सिंगल इज रिक्वायर्ड 2 electrons, double is required 4 electrons and triple is required 6 electrons. Thank you. And in upcoming video we will do versatile nature of the carbon. Thank you so much.